प्लस टू क्लास ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ when charges are at rest ਚਾਰजेस मूव नहीं कर रहे ਹੁੰਦੇ ਚਾਰजेस at rest ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ that is current electricity ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ when charge is in motion when charge is flowing charge move ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਚ ਠੀਕ ਹੈ flow of charges ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ इलैक्ट्रिक करंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਚਾਰजेस ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰजेस ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਕਦੋਂ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਨ ਕਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ फ्लो ऑफ चार्जेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾउ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਅਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੁਣ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰजेस ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰजेस ਫਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਠੀਕ ਹੈ करंट कैरियर्स अलग अलग होंगे ने वो आपां अज स्टडी करना सो लेट्स मूव सो स्टूडेंट्स आपां करंट कैरियर्स एंड इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स दो टर्म्स अज दी वीडियो स्टडी करांगे मैं हाँ मंजू बाला लैक्चरर फिजिक्स एट गवर्नमेंट कोएड मल्टीपर्पज सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल पासी रोड पटियाला सो वी कंटिन्यू What are current carriers? The charged entities whose flow in a definite direction constitute the electric current called current carriers. Electric current flow करता है ठीक है इलैक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेट डायरैक्शनस होंदी है ਉਹ डेफिनेट डायरैक्शन ਜਾਂ ਉਹ करंट फ्लो एक चार्ज इंटाइटीज नाल कर रहा ਹੁੰਦਾ ठीक है कुछ आयन्स होंगे हैं कुछ इलैक्ट्रॉन्स होंगे हैं कुछ होल्स होंगे हैं ठीक है वो आप अलग अलग स्टडी करन जा रहे हैं सब तो पहला आप देखांगे सॉलिड्स दे विच की हुंदा है आपां नूं पता है सॉलिड्स दे विच कुछ गुड कंडक्टर्स होंगे हैं जिस तरह मैटल्स ठीक है मैटल्स बहुत अच्छियां कंडक्टर्स होंदियां बड़ी ईजिली इन्हां दे विच करंट पास थ्रू हो जाता है इहदे विच करंट कैरियर्स किहड़े हुंदे आ इह हुंदे आ वैलेंस इलैक्ट्रॉन एटम दी स्ट्रक्चर दिमाग च लेके आओ एटम की स्ट्रक्चर दे विच न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स दे विच इलैक्ट्रॉन्स होंदे हैं रिवॉल्व कर रहे होंदे हैं एक जिहड़ा सब तो बाहर वाला ऑर्बिट हुंदा है उस विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंदे हैं उन्हां नूं आपां कहने आ वैलेंस इलैक्ट्रॉन दीज इलैक्ट्रॉन्स आर नॉट फर्मली अटैच्ड टू इंडिविजुअल एटम्स एंड आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਫਰਮਲੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਾਈਟਲੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੋਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ठीक है वो तो बिल्कुल ही उन्होंने आपां कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे हैगे सो इंसुलेटर जिस तरह ग्लास है एबोनाइट है देयर आर नॉट फ्री चार्ज
or not any current carriers। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਲਿਕੁਇਡਸ ਤੇ। NaCl ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ, ठीक है, एंड क्लोरीन आयन, ठीक है। Na+ हो गया सोडियम आयन, इसनों आपां कह दिंदे आ कैटाइन्स। एंड नैगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन, इनू आपां कह दिंदे आ अनाइन्स, ठीक है। नैक्सट सोल्यूशन या नैक्सट लिक्विड ले लो कॉपर सल्फेट CuSO4। इस दे विच करंट कैरियर्स होंदे हैं Cu++ आयन एंड SO4- आयन। सम लिक्विड्स through which electricity can pass are electrolytes। कुछ लिक्विड्स होंदे हैं जिहदे विचों दी इलैक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, इसनों आपां इलैक्ट्रोलाइट्स कह दिंदे आ। Thus in an electrolyte electric current is due to simultaneous drifting of cations and anions in opposite directions। मतलब इलैक्ट्रोलाइट दे विच कैटाइन्स एंड अनाइन्स एक दूजे दे ऑपोजिट डायरैक्शन च मूव कर रहे हैं, दैन आपां कहने कि इलैक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। गैसिस दे विच जदों आपां नॉर्मल कंडीशनस की गल करिए, गैसिस दे विच कोई चार्ज या करंट कैरियर्स नहीं हुंदी हैगियां क्योंकि ये गैसिस इंसुलेटर्स हुंदे हैं। बट आपां गैसिस नूं भी आयनाइज्ड कर सकते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे के और एट लो प्रैशर ते, ठीक है। या आपां इन्हां नूं इस तरह आयनाइज्ड कर सकते हैं एक्सरेज नाल, ठीक है। इस तरह करके गैसिस दे विच करंट कैरियर्स किहड़े हो जाणगे? इलैक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन्स ऑफ दी गैस। ये हो गए करंट कैरियर्स। नैक्सट अपनी टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट, इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स हुंदी है जदों आपां किसी सैल नूं, सैल पता तुसी ड्राई सैल पढ़िया होया, डेनियल सैल, क्लेंचे सैल्स, ठीक है। सैल दे विच इलैक्ट्रोड्स हुंदे हैं, दो इलैक्ट्रोलाइट्स हुंदे हैं, ठीक है। कोई भी सैल है उस दे विच जदों आपां कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, कोई करंट नहीं लै रहे हैगे, मतलब वो सैल नूं किसी सर्किट दे विच आपां कनैक्ट नहीं किता होया, दैन उस च मैक्सीमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुंदा है? उस मैक्सीमम पोटेंशियल डिफरेंस नूं उस सैल दा इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स कह दिंदे आ। इन शॉर्ट आपां इहनूं डिनोट करदे आ EMF ऑफ अ सैल। सो इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ अ सैल is defined as maximum potential difference between two electrodes of a cell when no current is drawn from cell or cell is in open circuit। इसनूं डिनोट करते हैं आपां एप्सिलॉन नाल। एप्सिलॉन हुंदा है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E वैक्टर डॉट DL वैक्टर एंड इस EMF दा SI यूनिट हुंदा है, मतलब सैल का जोड़ा EMF होंगे आप उसनों कहने इन्ने वोल्ट का ये, ठीक है, 1.5 वोल्ट का जिस तरह ही। वोल्ट वैसे कॉमनली यूज्ड सिंबल SI यूनिट है दा, पर आप इसनों जाउल पर कूलम भी कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तुसी बड़ी आम जिहड़ी हैगी है टर्म यूज़ की है, ठीक है। उस तो पहला तुसी इहदे विच ये देख लो E की है, E है इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इस DL है स्मॉल पाथ सजमेंट वेक्टर, ठीक है, स्मॉल पाथ सजमेंट वेक्टर। इसनूं आपां इस तरह डिनोट भी कर सकते हैं जिस तरह एक पॉजिटिव टर्मीनल हुंदा है सैल का, एक नैगेटिव टर्मीनल हुंदा है। इलैक्ट्रिक फील्ड नूं आपां फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड सैल का EMF किस ते डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड्स ते, नेचर एंड कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट ते एंड इहदे टैंपरेचर ते, ठीक है। EMF ऑफ सैल 3 क्वांटिटीज़ से डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड्स, नेचर एंड कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल एंड इट्स टेम्परेचर। सो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस तुसीं आम छोटी क्लासां तो सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो। बड़ी थोड़ी ये जिहड़ा मैं टॉपिक करा रही हाँ तुहानूं 10th का ही रिविजन है, 10th च तुसीं इसनूं पढ़िया होया। बट इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स तुहाडे लई थोड़ी बहुत नवीं टर्म हो सकती है। सो अज आपां डिफरेंस देखते हैं इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस च। इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स रिलेटिड हुंदा है सोर्स ऑफ करंट नाल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटिड हुंदा है विद एनी टू पॉइंट्स ऑन इलैक्ट्रिक सर्किट। सेकंड, इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज़ अ कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट। बट पोटेंशियल डिफरेंस एक इफैक्ट है, जदों आपां इसनूं उहदे विच लगाता, सर्किट कंप्लीट करता, कनैक्शन करते, दैन यह एक इफैक्ट है। थर्ड डिफरेंस है इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। EMF मतलब आपां एक यूनिट चार्ज नूं पूरे सर्किट दे विच कंप्लीटली एक सर्किट च लैके जाना है, दैन कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होया। बट पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है आपां यूनिट चार्ज नूं एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, दैन कितना अमाउंट ऑफ वर्क होया। फोर्थ डिफरेंस है EMF it is also defined as the maximum potential difference between the two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell or cell is in the open circuit। ठीक है, तुहानूं डेफिनेशन समझा चुकी हाँ। जदों ओपन सर्किट है, कोई कनैक्शन नहीं होया विया, दैन दो इलैक्ट्रोड्स दे विच जिन्ना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। बट पोटेंशियल डिफरेंस it will exist between any two points in a circuit when current is sent by the cell in the circuit। दो पॉइंट्स दे विच जिन्ना डिफरेंस हुंदा है, जदों आपां करंट उहदे विच सैल दे विच भेजता तां उस दे विच जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा है, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across all components of circuit including to that of a cell। पूरे सर्किट दे विच सारे कंपोनेंट्स जिन्ना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उन्हां सारिਆਂ ਦੇ टोटल ਨੂੰ ਆਪਾਂ EMF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। बट पोटेंशियल डिफरेंस in a closed circuit the different components of a circuit will have different potential difference। ਆਪਾਂ पूरा सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग कंपोनेंट ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ अलग-अलग कंपोनेंट ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस अलग-अलग होएगा। सिक्स्थ पॉइंट है EMF इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रान फ्रॉम सैल। किन्ना भी ਆਪਾਂ रेजिस्टेंस सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ नहीं डिपेंड करता हैगा, ना ही इस गल ਤੇ डिपेंड करता कि ਆਪਾਂ उस सर्किट ਵਿੱਚੋਂ किन्ना करंट ड्रॉ कर रहे हैं। बट जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है डिपेंड करता हुंदा है कि आपां उहदे विच रेजिस्टेंस किन्ना लगाया होया ते उस दे विचों आपां करंट किन्ना ड्रॉ कर रहे हैं या करंट किन्ना फ्लो कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अज आपां यही छोटा जिहा टॉपिक नाल स्टार्टिंग करनी सीगी। यह टॉपिक जिहड़ा है लेंथी है बट इंटरस्टिंग है। तुसी मैनूं उम्मीद है कि तुसी ये पूरा इंटरस्ट नाल ये टॉपिक पढ़ोगे, पूरा यूनिट दे विच तुहानूं इंटरस्ट रहेगा। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू।